برلی واولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین برائے تشریف آوری رحمت للعالمین و امیر المؤمنین و سیدۃ النساء العالمین و ائمۃ الطاہرین بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من نفس واحدة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ پروردگار عالم نے انسان کی تقسیم بہت خوبصورت کی ہے۔ ایک صنف کو صنف نازک خاتون بنایا ہے اور دوسرے کو مرد بنایا ہے۔ ہم اگر ہدایت تک، حق تک، عدالت تک اور اللہ کی جانب اپنے پرفیکشن کے سفر کو درست چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی خلقت میں جو عدالت ہے نا اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا، اور بالخصوص خواتین کی مجلس ہے میری، اکثر سامعین جو ہیں، سامعات جو ہیں وہ خواتین ہیں، اور اس لیے بھی کہ انفارچونیٹلی ہمارے درمیان یہ ایک معمہ یا پھر یوں کہیں کہ ایک غلط سوچ بنا دی گئی ہے کہ خاتون جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے یا وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے یا وہ جو ہے رجال قوامون علی النساء مردوں کے ماتحت تصور کی جاتی ہے، یا پھر یوں کہیں کہ عورت کے جو حقوق ہیں وہ کم ہیں، یا پھر ایک خاتون جو ہے وہ ڈپینڈنٹ لائف گزارتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسلام ہم کبھی بھی اپنی سمجھ دین کے بارے میں مکمل نہیں کر سکتے جب تک ہم ہر زاویے سے جو ہمارے لیے اللہ نے تقسیم رکھی ہے، چاہے وہ فروعات میں ہو، چاہے وہ اصول میں ہو، چاہے وہ ہماری انڈیویجول ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ ہماری سوشل ذمہ داریاں ہوں، دونوں میں ہم تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہمارے پاس ایک واضح کلیئرٹی نہ ہو اس بات کو لے کر کہ اللہ نے یہ تقسیم کیوں، کیسے اور کس لیے رکھی ہے، درست۔ اور اسی لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ ان ایام میں، میں چاہوں گی کہ ہم اپنی قدر جانیں۔ میں نے کل بات کی کہ اللہ ہر ایک کے لیے واپسی کا راستہ رکھتا ہے۔ میں نے کل بات کی کہ خداوند کریم کی جانب پلٹنے کے لیے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔
ना आदम ने देर की, ना हज़रत यूसुफ ने देर की, ना याकूब के भाइयों ने देर की, ना जनाब हुर ने देर की, ना किसी फाहिशा औरत ने देर की। अल्लाह ने हमेशा हर एक के लिए तौबा, इनाबत, बाज़गश्त का रास्ता रखा है। लेकिन हम बाज़गश्त सिर्फ़ अमाल के हिसाब से नहीं, हमारे अफ़कार भी तो इस्लामी, हमारी सोच भी तो दीन, हमारी फ़िक्र या हमारा विज़न जो है वो भी तो इलाही और समावी होना चाहिए। लिहाज़ा एक औरत का मकाम इस्लाम में क्यों जानना ज़रूरी है? याद रखिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आप फरमाते हैं अक्सरुल खैर फिन्निसा, सबसे ज़्यादा खैर या कसरत के साथ जो खैर है वो ख़वातीन के अंदर है। अलमरअतु कर्रैहान लैसतिल कहरमाना, अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं औरत जो है वो एक फूल की मानंद है, वो कोई पहलवान नहीं है। मेरे मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum, आप फरमाते हैं कि मुझे इस दुनिया में 3 चीज़ें पसंद है, एक नमाज, दूसरी कुरान और तीसरी अ, औरत, खातून, चाहे वो बेटी की सूरत में हो, चाहे वो जनाब खदीजा जैसी ज़ौजा की सूरत में हो, चाहे वो नासिरीन की सूरत में क्यों ना हो। एक नासिरा खातून जो राह इस्लाम में जिहाद करती है, अपने बच्चों को कुर्बान करती है। बस इस्लाम ने ये जो मकाम, ये जो इज्जत दी है, अंतुम लिबासुल लहुन्ना व हुन्ना लिबासुल लहुम कहकर दोनों को एक दूसरे के मसावी बना दिया है, फिर हम लोग क्यों इस तरह से उस मकाम को नहीं जानते, या अगर हमारे पास फजीलत है तो हमें इसके साथ करना क्या है। एक छोटा सा वाक़या है, तमसील के तौर पर, मिसाल के तौर पर बयान करूंगी असल मौजू की जानिब जाने से पहले, कि रिवायत है, रिवायत क्या, एक वाक़या है कि एक शख्स था जिसके पास बहुत बड़ा ख़ज़ाना था और उसकी आदत ये थी कि वो ख़ज़ाना जो है वो अपने घर के सहन में दफ़ना देता। जब उसने ख़ज़ाना अपना दफ़ना दिया तो उसकी आदत ये थी कि वो रात को जाकर किसी पहर उस ख़ज़ाने को वहाँ पर गिना करता था। गिनता कि मेरे पास कितना सोना, कितना चांदी की, कितना हीरा मोती और ये चीज़ें कितनी मौजूद हैं। यहाँ तक कि एक दिन उसके हमसाये ने देखा कि मेरा हमसाया जो है साथ वाले घर में रहने वाला, वो अपने ख़ज़ाने को हर रोज़ रात को गिनता है। इसकी नीयत ख़राब हुई हमसाये की और इसने वो ख़ज़ाना वहाँ से चुरा लिया। अब ये दोबारा गया है अपने ख़ज़ाने को गिनने के लिए, जब गया देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, थोड़े से पत्थर पड़े हुए हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो वह हैरान हुआ, आखिर में उसने अपना ये राज़ फ़ाश किया, आस-पास सवाल किया, कहा यहाँ ख़ज़ाना दफ़न था, किसी ने देखा, पूछते-पूछते अपने हमसाये के पास आया। जब हमसाये से उसने पूछा कि तुमने ख़ज़ाना देखा? तो उसके नेबर ने, जिसने चुराया था, उसने कहा कि तुम्हें फ़िक्र किस बात की है? तुम्हारा खजाना अगर खो गया, किस चीज़ की कमी हो गई तुम्हें? तुम ऐसा करो कि तुम उस जगह पर जहाँ तुमने खजाना दफनाया था, वहाँ जो पत्थर पड़े हुए हैं, किसी ने जो चुराया है और उसकी जगह पत्थर रख दिए, उन पत्थरों को गिनो। उसने कहा मैं क्यों ऐसा करूँ? तो हमसाये ने जवाब दिया, कहने लगा क्योंकि तुमने इस्तेमाल में तो उस सोने चांदी को नहीं लाना था, गिनना ही था। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि सोना गिना जाए या पत्थर गिना जाए? जब गिनना ही है, इस्तेमाल में नहीं लेकर आना। आप अपना मकाम क्यों जानना ज़रूरी है? आपके लिए अपना मकाम जानना क्यों ज़रूरी है? आप अपना मकाम जानकर क्या कर सकते हैं? फिर अपनी हैसियत, अपनी हस्ती की कद्र जानकर उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसके शायान शान अपना मकाम व मर्तबा बनाना चाहते हैं। उसके मुताबिक अपने गोल्स बनाना चाहते हैं। जो अल्लाह ने आपको आपका डोमेन दिया है, उसके मुताबिक आप अपनी वर्थ, अपने पोटेंशियल को बड़ा करना चाहते हैं। मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी कद्र के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को रखें। इसलिए मर्द के लिए लाज़मी है कि वो अपने मकाम से आशना हो और औरत के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मकाम से आशना हो। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि इस्लाम औरत के हुकूक का अलमबरदार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि हमें पिदरशाही से निजात चाहिए। मर्द बतौर मर्द अपने मकाम से आशना हो और औरत बतौर खातून अपने मकाम और अपनी हैसियत से आशना हो, और दोनों अपने अपने डोमेन में रहते हुए, अपनी हस्ती, अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए एक दूसरे के लिए मुआविन बने।
ایک دوسرے کے لیے ساتھی بنے. اور اسی بنیاد پر ہم اسلام میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس توازن کو، رسول اللہ نے اس توازن کو کیسا رکھا ہے، اس کو کس طرح کا قرار دیا. میں سرسری سی جو آپ کہیں سنت یا سیرت کی باتیں ہیں اس کے مطابق آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں البنات و حسنات، بیٹیاں نیکیاں. البنات و حسنات، جو بیٹیاں ہیں وہ نیکیاں ہیں. نیکی کا مطلب کیا ہے؟ جزا ملے گی، بدل ملے گا. کرو گے تھوڑا، جواب زیادہ ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو اللہ اس کے بدلے میں 10 برابر دیتا ہے. نیکی کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن اس کا بدل کیا ہے؟ 10 کے برابر ہے. فرمایا بیٹی جو ہے وہ ایک ہے، لیکن اس کا بدل کیا ہے؟ 10 کے برابر ہے. بیٹی آپ کہیں کہ نعمات میں ایک شمار ہوگی، لیکن اس نعمت کی برکت کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے وہ ایک نہیں ہوگی، وہ 10 کے برابر، 10 نعمتوں کے برابر ہوگی. اسی لیے میرے نبی سید المرسلین فرماتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہو تو پہلے اپنی بیٹی کو تحفے دو. بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو تو تحفے پہلے اپنی بیٹی کو دو. پھر فرماتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ میں سے کوئی بھی پانی مانگے، ماں بھی پانی کا سوال کرے اور باپ بھی پانی کا سوال کرے، تو پہلے پانی کس کو دینا ہے؟ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے پانی ماں کو دو. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ جزا دیتا ہے، اللہ بدل دیتا ہے، اللہ ثواب دیتا ہے، لیکن خواتین کو زیادہ دیتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. اس کی وجہ بھی میں بیان کروں گی کہ جزا تو اللہ دیتا ہے، ثواب اللہ کی جانب سے، بدل اللہ کی جانب سے، لیکن وہ خواتین کے حصے میں زیادہ آتا ہے. اس کے بعد فرمایا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ کسی خاتون کے اوپر ظلم کرنا ہے. اللہ نے اگر مرد کو مرد بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنی مردانگی سے اپنی عورت کی حفاظت کرے. اس لیے اس کو قوام نہیں بنایا کہ وہ اپنی قدرت سے عورت کو محکوم بنا دے. فرمایا کہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ عورت کے اوپر ظلم کرنا ہے. آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی اہانت نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو پست مرد ہو. مرد کی مردانگی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کی اہانت یا بے عزتی کرے. مرد کی مردانگی کیا ہے؟ کہ وہ ایک عورت کو عزت اور تکریم دے. اول تو مومن کو عزت و تکریم دے، پھر اس کے بعد عورت کو عزت و تکریم دے. مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا کہ جس کی بیٹی ہوگی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح میرے ساتھ وہ شخص ہوگا جس کی بیٹی ہوگی. پھر دوسری جگہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں بیٹی ہے اس کے گھر کے اوپر فرشتوں کا سایہ ہے. جس کے پاس اللہ نے بیٹی جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے، بیٹی ماں باپ اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جاتی ہے، سپر بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. اور وہ اللہ سے اگر بیٹی جنتی ہو تو، اور وہ اللہ سے گزارش کرتی ہے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے جنت میں ڈالا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تو میرے ماں باپ کے اوپر نظر عذاب کرے اور میرے ماں باپ کو جنت میں نہ ڈالے. یعنی بیٹی جو ہے وہ اپنی جنت کی نعمتوں کو، اپنی جنت میں ہونے کی حیثیت کو اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرتی ہے، وہ والدین کو دیتی ہے. اس کے بعد میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خیرکم خیرکم نساءکم و بناتکم، بہترین خیر، بہترین چیز تم میں جو ہے وہ تمہاری خواتین اور تمہاری بیٹیوں میں ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک خاتون جب کسی گھر میں بیٹی کے عنوان سے آتی ہے تو وہ حسنات اور برکات اور رحمت کی شکل میں آتی ہے. بیوی کی شکل میں ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ہم تمہیں اس سے سکون دے سکیں. بس ہم یہاں پر ایک اور فضیلت یاد رکھیے گا، یہ فضیلت ہے. اور وہ مائیں جن کی بیٹیاں ابھی چھوٹی ہیں یا جن کی بیٹیاں ابھی 6-7 سال کی 8 سال کی ہیں یا جن کی بیٹیاں نئی بالغ ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کو بلوغت سمجھائی جا سکے،
वो ज़रा गौर से इस बात को सुने कि अल्लाह ने बेटी की, खातून की, औरत की फ़ज़ीलत ये रखी है कि उसको जल्दी बालिग़ कर देता है, उसको जल्दी बालिग़ कर देता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि अल्लाह अपनी जानिब आने का जो रास्ता है, वो एक बच्ची पर जल्दी खोलता है और एक बच्चे पर देर से खोलता है। अल्लाह की बंदगी का जो सफ़र है, वो कौन पहले शुरू करता है? बेटा या बेटी, लड़का या लड़की? अल्लाह ने लड़की के ऊपर, बेटी के ऊपर, खातून के ऊपर इस मकाम, इस मर्तबे को ज़्यादा रखा है। ये फ़ज़ीलत है। अक्सर ये कहा जाता है बेटी बहुत छोटी है, गर्म दिन है, इतने लंबे रोज़े कैसे रखेगी, नमाज़ फ़ज्र के लिए उठाना मुश्किल है। खालिक ज़्यादा मेहरबान है या माँ? वो खुदा जो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो बेहतर जानता है या फिर हम जैसे नाक़िसुल अक़्ल, हम जैसे कम फ़हम, टूटे-फूटे कदमों के साथ सफ़र ईमान तय करने वाले, अपनी नक़्स इल्म की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले गलत करने वाले? खुदा बेहतर जानता है, अल्लाह को बेहतर इल्म है। फ़ज़ीलत है ख़ातून की कि वो जल्दी बालिग़ हो जाती है और ये अल्लाह की जानिब से मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है कि वो ख़ातून को जल्दी बालिग़ कर देता है। देखिए इस बात को समझने के लिए एक छोटी-सी मिसाल जो आप अपनी बच्चियों को ज़रूर दें, उनको पता हो कि ये अल्लाह ने उनके लिए एक ख़ास नेमत, एक ख़ास मर्तबा, एक एक्सक्लूसिवनेस है अल्लाह की बंदगी में। वो ये कि अल्लाह अगर किसी के लिए जज़ा का रास्ता खोलता है, मुझे बताएँ जन्नत किसकी होगी? उसी की ना, कि जिसके पास नेमत ज़्यादा होंगी या जिसके पास सवाब ज़्यादा होंगे। जन्नत कैसे खरीदी जा सकती है? एक इंसान जो 30 साल की उम्र में मर गया, एक इंसान जो 60 साल की उम्र में मर गया, क्या दोनों की ज़िंदगी बराबर है? नहीं ना। एक के पास हसनात ज़्यादा है और एक के पास हसनात कम हैं। लिहाज़ा अगर हम ये देखें कि हसनात की रेस में जिसको जितना बड़ा वक़्त मिला है, गरचे अमाल का दारोमदार निय्यात पर है, उस बात से कोई मैं नहीं कहूँगी कि कोई इख्तिलाफ़ है, वो बात अपनी जगह है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। लेकिन अगर हम तौफ़ीक़ के दायरे को देखें, एक बंदा जिसने 30 साल बंदगी की है और एक बंदा जिसने 35 साल या 40 साल बंदगी की है, फ़र्क है या नहीं? टेक्निकली फ़र्क बनता है ना, कि जिसने ज़्यादा अरसा बंदगी की है, उसके पास सवाब कमाने के ज़राए ज़्यादा होंगे। कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं कि हर इंसान मुझसे बेहतर है। जो मुझसे बड़ा है वो इसलिए बेहतर है क्योंकि उसकी नेकियां मुझसे ज़्यादा हैं। जो मुझसे छोटा है वो मुझसे बेहतर है क्योंकि उसकी सय्यात, उसकी बुराइयां मुझसे कमतर हैं। फिर फरमाया कि जो मेरे बराबर है वो मुझसे बेहतर है क्योंकि उसके गुनाह पर मैं शाहिद नहीं हूँ, जबकि मैं अपने गुनाह पर यानी अल्लाह की बंदगी में जो कमी बेशी हुई है उस पर शाहिद हूँ, गवाह हूँ। लिहाजा इमाम अली भी इंसान की इबादत का जो एक पैरामीटर है या एक आपके स्केल है, उसको जब रखते हैं तो वक्त के ज़मान में या ज़मान के दायरे के अंदर तो आना पड़ता है। लिहाजा जिसने ज़्यादा अरसा, ज़्यादा पीरियड के लिए बंदगी की है, यकीनी सी बात है कि उसकी बंदगी और है, उसके पास सवाब कमाने का एक तौफ़ीक़ का ज़रिया और है और उसके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जज़ा को हासिल कर सके और जन्नत तक पहुँच सके। लिहाजा हम कहते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी के 9 साल, 9 साल, पहले 9 साल ही ऐसे गुज़रे हों कि उसकी जज़ा और सज़ा का हिसाब ना हो और उसके बाद से उसकी जज़ा का सिलसिला शुरू हो जाए। यानी उसको वो जो कुछ वो नेकी करे, मिसाल के तौर पर 9 साल की बच्ची अगर अपने माँ-बाप को पानी पिलाती है, तो उस पर जन्नत वाजिब है या नहीं? पानी पिलाने का सवाब यही है ना कि जन्नत वाजिब हो जाती है। अब मुझे बताएँ कि जिस 9 साल की बच्ची ने पानी पिलाया, उस पर जन्नत वाजिब है या नहीं? वाजिब है। उसने अपने माँ-बाप को पानी पिलाया है। 10 साल के बच्चे ने पानी पिलाया, जन्नत वाजिब है या नहीं? अल्लाह को खबर, अभी ये मुकल्लफ नहीं है। इसने काम बहुत अच्छा किया है, इसको सवाब मिला होगा, लेकिन जब तक वो मुकल्लफ नहीं हुआ, कोई मुफ्ती, कोई भी मुहद्दिस, कोई नहीं बता सकता कि उसके इस अमल की जज़ा बतौर मुकल्लफ उसको मिलेगी या क्या उसका होगा। नाबालिग है,
नाबालिग है, उसके पास सवाब है, हतमी नहीं, अभी उसका परवंदा या उसका आपके फाइल तो खुली ही नहीं कि जहाँ पर सब कुछ उसके लिए दर्ज कर दिया जाए। ऑन रिकॉर्ड तो सब कुछ है, लेकिन उसको मुकल्लफ नहीं बनाया गया, उसको अभी आज़ाद रखा है कि दुनिया को एक्सप्लोर करो, देखो, समझो। लिहाजा जो बच्ची है जो एक गिलास पानी पिलाती है, इसके बदले में वो क्या ले लेती है? जन्नत की बशारत। ये फजीलत है आपकी, ये फजीलत है आपकी कि अल्लाह आपको एक गिलास पानी पिलाने की बदौलत 9 साल की उम्र में जन्नत वाजिब कर देता है। अगर आप बतौर खातून छोटी सी 10 साल की बच्ची अपने माँ बाप के चेहरे पर नजर करती हैं तो ये इबादत है, इसका सवाब है। अगर आप सुबह नमाज के लिए जागती हैं फिर उसके 2 रकत नमाज पढ़कर दोबारा सो जाती हैं तो वो सोना जिहाद काउंट होता है, वो जिहाद का आपको सवाब है। जो रोजा रखते हैं उसके ऊपर तमाम मलाइका आपके खून, गोश्त, पोस्त, हड्डी, यहाँ तक के बालों पर बैठकर आपके लिए तलब मगफिरत कर रहा होता है। आप कुरान पढ़ते हैं तो उसकी एक एक जज़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना पढ़ना भी आपके नामा आमाल को भर देता है, भर देता है। एक बात मैं यहाँ ब्रैकेट में बताती चलूँ उन बच्चियों के लिए, और जो माएँ सुन रही हैं वो ज़रूर अपनी बच्चियों को, निसिस को बताएं कि अल्लाह ने क्या सिलसिला बुलूगत का रखा है, कितना प्यारा है वो, सत्तारुल अयूब कैसा। ये छोटी छोटी बातें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कारामद होती हैं। खुदावंद करीम जब इंसान को बालिग करता है, लड़की 9 साल और लड़का 15 साल, जब लड़के को बालिग या बच्चे को, इंसान को बालिग करता है तो उससे पहले तो उसकी कोई नेकियां और बुराइयां लिखी नहीं जा रही होती है ना, कि उसके बदले उसे हसनात मिले या सय्यात मिले। मुकल्लफ नहीं होता, उसके ऊपर किसी चीज की तकलीफ नहीं होती, जवाबदही नहीं होती। जब वो बालिग होने के बाद पहला गुनाह करता है तो मलाइका हैरत में आ जाते हैं कि ए माबूद, इस बंदे ने आज तक तेरी खिलाफ वर्जी नहीं की थी, आज हम देख रहे हैं कि इसने गुनाह किया है, इसने गुनाह किया है। या अल्लाह, इतना बड़ा, इतनी बड़ी जसारत इसमें आ गई, हम कैसे लिखें? अल्लाह की जानिब से जवाब आता है कि ये नादान है इंसान, इसके गुनाहों पर पर्दा डाल दो। लिहाजा फरिश्ते जो हैं वो अपने परों को उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि कोई दूसरा उस गुनाह को ना देख सके। यहाँ तक कि अब मलाइका ने पर डाल दिया नौबालिग के ऊपर, ताज़ा बालिग के ऊपर। यहाँ तक कि जब वो दूसरी दफ़ा गुनाह करता है तो मलाइका हैरत में आ जाते हैं और कहते हैं परवरदिगार ये फिर गुनाह करता है। खुदा कहता है दोबारा इसके ऊपर पर्दा डालो, इसके नामा आमाल में लिखा ना जाए। यहाँ तक कि तीसरी दफ़ा ऐसा होता है। और 40 दफा रिपीटेडली जब मैं और आप गुनाह करते रहते 40 गुनाह, अल्लाह पर्दा डालता है। वो सत्तारुल अयूब है, वो छुपाता है, वो कहता है अभी ये 9 साल की है, अभी ये तो सिर्फ 15 साल का है, बच्चा है, अभी इसके 14 ईयर्स पूरे हुए हैं, लिहाजा इससे जो खता हुई उसके ऊपर पर्दा डालो, इतनी जल्दी इसके गुनाहों को ना लिखो, अभी से आदत नहीं हुई। लेकिन 40 गुनाह जब हो जाते हैं और फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार इसकी तो आदत हो गई है गुनाह करने की, उस वक्त खुदा कहता है लगता है कि ये मुझे भूल गया, ये मुझे भूल गया, इसको याद ना रहा कि मैं इसका मालिक हूँ और इसके आमाल को देख रहा हूँ। लिहाजा अब इसके आमाल को या इसके गुनाहों को जो ये रिपीटेडली करता है, इसकी आदत या जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसको रिकॉर्ड पर लाया जाए। देखिए, आपके बालिग होने के बाद अल्लाह सबसे पहले जो चीज, सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह की तरफ से आता है वो क्या है? सत्तारुल अयूब होना। वो सत्तारुल अयूब ऐसा है कि वो सारे गुनाहों पर पर्दा डालता है। लिहाजा वो पर्दा डालता है हमारे ऊपर, हमारे गुनाहों के ऊपर, और हमारी एक नेकी के बदले क्या कहता है? मन जा अबिल हसना फलहू अशरा अमसालहा, एक नेकी करो उसके बराबर 10 गुना दूंगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और जो मोहब्बत है अहलुल बैत की, वो यहाँ कैसे फायदा देती है। देखिए 9 साल की बच्ची में अल्लाह ने क्या जजा उसके लिए, क्या सिलसिला, आपको कितना मजा आए कि मैं बालिग हो गई हूँ,
इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने मौला के नाम पर एक सलावात पढ़ूं, एक दुरूद पढ़ूं, तो वो दुरूद 70,000 नेकियों के बराबर मेरे नाम आमाल में चली जाती हैं। जन्नत में मेरे लिए एक दरख्त बन जाता है, और महल के लिए जो कसर है जन्नत में इंशाअल्लाह आपका, उसके लिए बहुत सारी ईंटें इस दुनिया से चली जाती हैं। और मैं दिन गुजरने के साथ साथ डे बाय डे मेरी एक सलावात मुझे जन्नत के इतने बड़े महल का मालिक बना देती है, मेरी आखिरत को आबाद कर देती है। और ये मोहब्बत अहलुल बैत की करती क्या है? देखिए, इस बात को थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें कि आप बालिग हैं, आप कहते हैं मेरे दिल में मोहब्बत है, चलें जो फुरूआत दीन है और जो नमाज रोज़ा हज ज़कात और बाकी सारी चीज़ें ये तो मैं करती हूँ, लेकिन इनके अंदर ये हुब अहलुल बैत की मोहब्बत क्या फ़ायदा देती है, किस तरह फ़ायदा देती है, कैसे सवाब में बदल जाती है, और ये सवाब मेरे और आपके लिए आखिरत में कितना ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। आप जानते हैं कि इस वक्त तशय्यो के लिए आपने ज़ियारत आशूरा का इशू सुना होगा कि ज़ियारत आशूरा के ऊपर सवाल किया और कहा कि इसके कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं कि जिनको नहीं होना चाहिए, है ना? और उसके ऊपर हमारा स्टैंस क्या है कि हम मोहब्बत वाले हैं, हम अहलुल बैत से मोहब्बत करते हैं। अब जिन्होंने अहलुल बैत से बुग़्ज़ रखा है, हम उनसे मोहब्बत ही नहीं कर सकते। ये मोहब्बत का तकाज़ा ही नहीं है। ये चीज़ हमारे इश्क के साथ नहीं जाती। हम किसी के बुग़्ज़ में नहीं जलते, हम किसी की मोहब्बत में जलते हैं। जलते हैं से मुराद ये आतिश है मोहब्बत की, कि जो हमारे लिए सियाह सफ़ेद को अलग करती है। और इसका फ़ायदा क्या है? याद रखें, आपके दिल में जो इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद है, उसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह ने जज़ा और सज़ा, ये 2 चीज़ें हैं ना, सवाब और अज़ाब, इन दोनों को अल्लाह ने फ़रिश्तों के नज़दीक सवाब को बनाया है रोशनी, रोशनी बनाया है, और जो अज़ाब है उसको तारीकी बनाया है, उसको अंधेरा बनाया है। अब जो सवाब है वो रोशनी की तरह, नूर की तरह चमकता है, और जो अज़ाब है, जो सवाल है, जो अताब है, गुनाह है, वो नूर की तरह है। और ये जो वो सियाही की तरह है, अंधेरे की तरह है, डार्क है वो बिल्कुल आप समझे कि ब्लैक डॉट की तरह है। अब जो सियाही है वो तो काली चीज़ है, जो सवाब है वो क्या है? नूर है। और ये नूर अल्लाह कहाँ से लाता है? ये नूर कैसे डाला जाता है? हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नमाज कोई पढ़े, नमाज एक अमल है, लेकिन हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद उसे नूरानी कर देती है, तो वो जज़ा बन जाता है। सदका देना एक अमल है, एक नेकी है। जब उसके अंदर हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद शामिल हो जाता है, तो वो नूरानी होकर जज़ा में बदल जाता है। अब फरिश्तों की आंख उसे बतौर सवाब देखती है। इसी तरह रोज़ा रखना भूख और प्यास है, लेकिन अगर ये हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ हो, तो हमारी भूख और प्यास मुनव्वर रोशन हो जाती है, लिहाजा मलाइका उसे नूर की सूरत में देखते हैं। इसी तरह हमारा किसी के साथ इखलाक के साथ पेश आना, ये अगर हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ हो, तो हमारा ये इखलाक नूरानी हो जाता है, और मलाइका उसे सवाब के नज़र से देखते हैं। और इसी तरह अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता रहे, तवाफ करता रहे, हज उम्रे अंजाम देता रहे, अगर उसके माल से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहे, वो बहुत खुश अखलाक हो, उसमें हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद ही नहीं है। अब वो अमल क्या है? वो तारीकी है, उसके अंदर नूर नहीं आया। उसके अंदर नूर नहीं आया तो वो सवाब में नहीं बदला। मलाइका की आंखें अमल तलाश नहीं करती, मलाइका की आंखें नूर तलाश करती हैं, नूर तलाश करती हैं। बस जब उन्हें नूर नजर आ जाता है तो वो उसको जजा समझती हैं, और अगर उन्हें नूर नजर ना आए तो वो एक्शंस की कसरत है, जो तारीकी है, जो तारीकी है। अब इसको वो जजा के तौर पर नहीं देख सकते। समझ में आया ना कि कभी कभी
इसी ब्रैकेट में ये भी बात हल हो जाती है कि कभी कहते हैं फलां शख्स है जो इतना अच्छा है, इतना मोमिन है, इतना पाक। मोमिन से मुराद इतना अच्छे अखलाक कहते हैं, अच्छे किरदार कहते हैं, अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन वो मुबग़िज़ है। अब वो बुग़्ज़, उसका बुग़्ज़ जो है उसकी नेकियों को क्या कर देगा? तारीक कर देगा। मलाइका उसे बतौर नूर देखेंगे ही नहीं। अब जब बतौर नूर नहीं देखेंगे तो उसकी जज़ा नहीं है, उसकी जज़ा नहीं है। जब उसकी जज़ा नहीं है तो किस तरह से वो उसकी बदौलत जन्नत हासिल कर सकेगा? आपके पास सिर्फ नमाज है, आपके पास सिर्फ रोज़ा है, आपके पास सिर्फ अच्छा इखलाक है, आपके पास सिर्फ अच्छे मुआमलात हैं, आपके पास सिर्फ सदका और खैरात करना है, आपके पास सिर्फ नेकियां और हसनात करना है। नहीं, आपके पास हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद मौजूद है। आपके पास इन तमाम इबादतों की चाबी, जिसकी बुनियाद पर आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं, यानी ये कि जो करें उसका बेहतरीन बदल मिल जाए, वो आपके पास है। आप खुशनसीब हैं, आप बालिग हो गए हैं, आपको सिर्फ नमाज पढ़नी नहीं आती, आपको अपनी नमाज मोहब्बत सैयद शुहदा से रोशन करनी आती है। आप सिर्फ कुरान नहीं पढ़ते, बल्कि आपको हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद और हुब्बे नातिक़ कुरान से उस कुरान की तिलावत को मुनव्वर करके अपने नामा अमाल में रजिस्टर करवाने आता है। और इसी तरह सारी इबादत। आप बालिग हैं, आप जल्दी बालिग हो गए तो इसका मतलब क्या है? आपके पास ये सारे बड़े बड़े काम करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो गई है। और ये अपॉर्चुनिटी जो ज्यादा हो गई है, इसके तो फैल आप दुनिया नहीं आखिरत अर्न कर रहे हैं, सवाब मिल रहा है, जन्नत बन रही है, महल बन रहे हैं, कसर बन रहे हैं, नेमतें बन रही हैं, नहरें बन रही हैं, हूरो गिलमान है, वहां गुलामों की एक लंबी कतार है। जो कब से आपने अर्न करना शुरू कर दी? 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र में। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर 9 साल की उम्र में सवाब कमाने का रास्ता मिल जाता है, तो 9 साल की उम्र में गुनाह भी तो मिलता है ना? ये आधी बात होगी ना कि अगर हम ये कहें कि हाँ, अगर किसी को नेकी कर रहे हैं तो उसका सवाब मिलता है, तो दूसरी साइड पर कोई ये कह सकता है कि जो लड़का 12, 13, 14, 15 साल तक गुनाह करता रहे, उसको गुनाह भी तो नहीं मिलता। अगर उससे सवाब नहीं मिलता तो उसको गुनाह भी नहीं मिलता, उसके जहन्नम में जाने की भी चांसेस नहीं है। और बच्ची जिसने 9 साल की उम्र में बालिग हो गई है, अगर उसने झूठ बोला तो उसको गुनाह मिलेगा। अगर उसने वो किसी से जेलस हुई और उसने किसी को के खिलाफ कंप्लेन कर दी या गॉसिपिंग की, तो उसको गुनाह मिलेगा। ये गुनाह क्या है? आप पहले दिन ही अगर बच्चों को हम ये समझा दें कि गुनाह का कॉन्सेप्ट क्या है, गुनाह किस चीज़ को कहते हैं, क्या खुदा कहार है? क्या खुदा जब्बार है? क्या खुदा मुंतकिम है? क्या खुदा मुअद्दी यानी अदाब करने वाला है? वो अपने बारे में क्या कहता है? या मन सबक़त रहमतहू ग़ज़बा, रहमती वसिअत कुल्ल शै। हम दुआए जौफ़शन कबीर में अल्लाह को पुकारते हैं तो क्या कहते हैं? वो जिसकी रहमत उसके ग़ज़ब के ऊपर छाई हुई है। कुरान में खुदा कहता है मेरी रहमत हर चीज को अपने दायरे में लिए हुए है। बस वो खुदा जिसने अपना उन्वान रहमत बनाया है, उसके अजाब को हम कैसे इमेजिन करें? वो अजाब दे रहा है तो कैसे दे रहा है? ये बात अगर हम आज समझ जाएं, इस वीकेंड आप समझें कि ये आपको अल्लाह की जानिब से सवाब नहीं, हुब्बे अहलुल बैत का लुत्फ अगर बुलुगत में नहीं, तो अल्लाह की जानिब से अजाब को तो हमने इस वीकेंड क्लियर करना है। किस तरह से? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फर्ज करें आपके घर में आपने कोई डिनर, कोई पार्टी, कोई गैदरिंग रखी है, फ्रेंड्स की जैसे गेट टुगेदर्स होते हैं, हाँ, आपने वो रखा है और आप अपने सारी फ्रेंड्स को इनवाइट करती हैं, बशमूल अपनी बेस्ट फ्रेंड के। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जो आपके साथ सिर्फ एक आप कहें कि प्रोग्राम पार्टी एंजॉय करने वाली नहीं, बल्कि होस्ट भी हो सकती है, जिसको आप बहुत ओन करते हैं, जिसको आप बहुत अपना समझते हैं, जिसके बारे में आपको यह है कि इसके बगैर तो मैं कोई भी गेट टुगेदर एंजॉय नहीं कर सकती, इसका होना मस्ट है।
उस टाइप की फ्रेंड को आप कॉल करती हैं और आप कहती हैं कि हाँ जी संडे को हम सब मिल रहे हैं, हमारे मेरे घर में गेट टुगेदर है और रात को 8 बजे आ जाना। अब अगर वो 8 बजे आपको ये जवाब दे और कहे कि 8 बजे तो मुझे ड्रामा देखना होता है, 8 बजे तो मेरा फ़ेवरेट सीज़न आ रहा होता है, या वो कहे कि 8 बजे तो मेरे सोने का टाइम है, मैं तो 8 बजे नहीं आ सकती, या 8 बजे मैंने रेस्ट करना है, मुझे आराम करना है, या फिर अगर ये कहे अगर मुझे याद रहा तो मैं आ जाऊँगी। इनमें से कोई एक जवाब भी आपको अच्छा लगेगा? ऑनेस्टली बताएँ। ऑनेस्टली अच्छा लगेगा? नहीं। आप कहेंगी मैंने बुलाया है और मैंने इतने प्यार से, इतनी ओनरशिप के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ बुलाया है, कभी ड्रामा, कभी भूल जाऊँगी, कभी सोना, कभी रेस्ट करना, ये सारी चीज़ें मेरी दावत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेरे इन्विटेशन से ज़्यादा ये चीज़ें एक दिन, अगर ये गैर ज़रूरी चीज़ें जो कभी भी की जा सकती, छोड़ के मेरे पास आ जाए, क्योंकि उसके बगैर मेरा गेट टुगेदर कामयाब नहीं है, या फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा, या वो एन्जॉयमेंट नहीं होगी, तो आप फिर उसके बाद उसके जवाब में उसको क्या कहेंगी? आप यही कहेंगे ना कि अगर तुम ना आई, बेस्ट फ्रेंड है, आप कहेंगे तुम्हें आना है, अगर तुम ना आई तो मैं भी नहीं आऊँगी। अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारा फलां-फलां मैसेज इसको दिखा दूँगी। अगर तुम ना आई तो कल मेरे से तुम्हारी बातचीत नहीं होगी, और आप थ्रेटन करना शुरू कर देते हैं, धमकाना शुरू कर देते हैं, डराना शुरू कर देते हैं। क्या आपके डराने का, धमकाने का या बुरा-भला कहने का मकसद ये होता है कि आप एक दफ़ा उसकी ना करने पर उससे आपको नफ़रत शुरू हो गई है? क्या आप किसी को जिससे बहुत मोहब्बत हो और वो कहे कि मैंने नहीं आना, मुझे सोना है, और आप आगे से कहें कि अरे भाई तुम्हें सोना, एक दिन के लिए आ जाओ, एक सीजन का एक एपिसोड थोड़ी देर के लिए मिस कर दो, मैं इतनी ज़रूरी तुम्हें तुम्हें अपने घर में फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए बुला रही हूँ, और तुम्हारा आना ना आना मैटर करता है, हाँ? तो आप आगे से जो बात करेंगी वो आउट ऑफ हेट्रेड होगा या आउट ऑफ लव एंड वार्मथ? आउट ऑफ लव एंड वार्मथ, है ना? कि आप कहेंगी कि मैं तुम्हारे बगैर इस गेट टुगेदर को हो कर नहीं सकती, तुम्हारा आना ज़रूरी है। लिहाज़ा आप मोहब्बत की वजह से उसको डराएँगी, डराएँगी। कोशिश क्या होगी? मतलब क्या होगा? तुम्हारे ना होने से फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे ना होने से फ़र्क पड़ता है। अल्लाह जो हमें होशियार करता है, इंज़ार करता है, अलर्ट करता है, हमें जहन्नम के बारे में बताता है, अपने अज़ाब के बारे में बताता है, इसलिए नहीं कि वो क़हार और जब्बार है फ़क़त, इसलिए क्योंकि वो बहुत मोहब्बत से बुलाता है, और जब उसकी मोहब्बत और उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी कद्र की के जवाब में मैं और आप अपनी नींद और फ़ुज़ूल और बेकार चीज़ों में या भूल जाने में चले जाते हैं, तो फिर खुदा कहता है जो लोग हमें भूल जाते हैं और तकब्बुर करते हैं, खुदा उनसे नाराज़ हो जाता है। उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, वो हमेशा के अज़ाब में रहेंगे। अल्लाह उन्हें अपने आप से दूर कर देगा। बस ये सारी बातें इसलिए नहीं कि वो खुदा हमारे ऊपर अज़ाब करना चाहता है, इसलिए है कि होशियार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, भुलाओ नहीं, अपनी फ़ॉरगेटनेस को किसी और चीज़ के लिए रखो, अल्लाह के लिए हाज़िर रहो, अल्लाह के लिए हाज़िर रहो। आप 9 साल की हैं और अल्लाह के नज़दीक इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि अल्लाह चाहता है कि आप आएँ। और अगर आप नहीं आएँगी, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। इसीलिए वो अज़ाब की बात करता है, इसीलिए वो नाराज़गी की बात करता है, इसीलिए वो इंज़ार की बात करता है। इंज़ार का मतलब होता है कि किसी को अलर्ट करना कि सोचो तुम्हारे साथ ये हो सकता है, करता नहीं है। हम करते किसी के साथ बुरा नहीं है, लेकिन अलर्ट करते हैं कि तुम्हें इस वक़्त ज़रूरत है एक्टिव होने की। लिहाज़ा खुदा भी जो कुरान में अज़ाब की आयात, जहन्नम के तज़किरे, सूरह वाक़िआ, सूरह अबस, सूरह गाशिया, ये सारी बातें जो खुदा करता है, ये मुझे और आपको खुदा अलर्ट करता है आउट ऑफ हेट्रेड और आउट ऑफ लव। मोहब्बत में ये खुदा की तरफ से रहमत है। उस खुदा की रहमत ऐसी है कि रिवायत है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। आप फरमाते हैं कि इज़ा कान यौमल क़ियामा नशरल्लाह तआला रहमतहु हत्ता यतबअ इब्लीस। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपनी रहमत को ऐसे मुतनशिर कर देगा, ऐसे मुंतशिर कर देगा, ऐसे फैला देगा कि इब्लीस भी सोचेगा कि क्या पता मैं माफ कर दिया जाऊं। अल्लाह की माफ़ी ऐसी है। इब्लीस यानी शैतान। शैतान देखेगा कि अल्लाह ने इसको भी माफ कर दिया, सबको खुदा ने माफ कर दिया, हो सकता है मुझे भी माफ कर दिया जाए। अल्लाह इतना माफ करने वाला, अल्लाह इतना मेहरबान है। अब वो खुदा जो इतना मेहरबान है और आपको डरा रहा है जहन्नम से, इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी ताकत को देखें? नहीं, इसलिए वो चाहता है कि आप जरूर उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें, उसकी उल्फत का जवाब उल्फत से दें, उसकी कुर्बत के मुतालबे का जवाब कुर्बत से दें। आप उसके पैगाम को, उसकी इनविटेशन को, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अला खैरिल अमल को नज़रअंदाज ना करें, उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर नज़रअंदाज कर दिया तो नुकसान किसका होगा वो भी बता दिया गया है। लिहाजा अल्लाह बालिग इंसान को होशियार करता है, मुकल्लफ को होशियार करता है और अपनी जानिब बुलाता है। मेहरबान है वो खुदा, अता करने वाला है वो खुदा। और यही वजह है कि अल्लाह इस सफ़र का जो उसकी बंदगी का है, जो उसकी रुबूबियत का है, जो उसकी जानिब अल्लाह के सवाब को हासिल करने का है, उसका दरवाज़ा पहले ख़वातीन पर खोलता है। फिर उसके बाद एक और बात जिसको जानना ज़रूरी है, वो ये कि अल्लाह ने आज तक, याद रखिए, खुदा की तरफ से सफ़र हिदायत तमाम ना हुआ जब तक ख़वातीन उसमें शरीक नहीं हुई, जब तक ख़वातीन उसमें शरीक नहीं हुई। तारीख़ गवाह है, हज़रत आदम ने जब पैगाम दिया तो हज़रत हव्वा के बग़ैर अल्लाह का पैगाम बंदों तक नहीं पहुँचाया। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मशरूत कर दिया इस्मत पाक दामनी जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा को। परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम को जब कहा कि खाने खुदा को तामीर करने के लिए जाएं, तो इब्राहीम से पहले जनाब हाजरा को सफ़ा और मरवा की साई करवाई और वहाँ आबाद होने के लिए कहा। अल्लाह ने जब हज़रत मूसा को कसरे फ़िरऔन में हिफाजत के साथ रखना चाहा, तो वहाँ पर पहले से जनाब आसिया मादर मूसा और ख़ाहर मूसा अलैहिस्सलाम को बतौर लश्कर इलाही खड़ा कर दिया। इसी तरह परवरदिगार आलम ने जब ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आपके ज़रिए चाहा कि ता क़याम क़यामत इंसानियत को उसके इत्माम तक पहुँचाएं, तो आपने उनके लिए बतौर नासिर सबसे पहला जो फ़र्द भेजा वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। आदम ने भी अपना मकसद मुकम्मल ना किया, जनाब मरियम ने ईसा ने भी अपना मकसद मुकम्मल ना किया, रसूल अल्लाह का मकसद मुकम्मल ना हुआ। बस कैसे हो सकता है कि आपका इतने बड़े बड़े कामों के अंदर एक खातून की कंट्रीब्यूशन के बगैर मकसद पूरा नहीं होता? तो कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा निज़ाम चल जाए बगैर खातून की कंट्रीब्यूशन के, बगैर खातून के रोल के? यही वजह है कि अल्लाह ने अपना जो आखिरी सफ़र रखा, आखिरी सफ़र से मुराद जो करबला में तकमील दीन को इंश्योर किया, उसमें अल्लाह ने ख़वातीन की शिरकत को हतमी किया। अल्लाह ने किया। जिस तरह जनाब मोहम्मद हनफिया ने जब इमाम हुसैन से कहा कि आप क्यों अपने साथ ख़वातीन और बच्चों को ले जा रहे हैं, तो इमाम ने क्या जवाब दिया था? अल्लाह इन्हें असीर देखना चाहता है, हुसैन नहीं। गरचे इमाम हुसैन भी देखें तो अल्लाह का पैगाम है, लेकिन आपने कितना वाज़ेह किया कि अल्लाह इन्हें असीर देखना चाहता है, अल्लाह असीर देखना चाहता है। यानी करबला से जो काफिला निकला है वो जनाब ज़ैनब लेकर जा रही हैं? नहीं, ये अल्लाह की मर्जी थी। आप जो शाम और कूफा पहुंची हैं, ये अल्लाह की मर्जी थी। खराबा शाम में जो रहे अल्लाह ने चाहा। इसीलिए कहते हैं कि यजीद ने सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत
آپ کو شہید کرنے کے بعد جو سب سے بڑی دوسری بڑی غلطی کی وہ یہ کی کہ اس نے جناب زینب کبریٰ کو کربلا سے نکلنے کی اجازت دے دی اور ان کو وہاں پہنچا دیا جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، یعنی شام۔ خود خود اس نے جناب زینب کبریٰ کو شام پہنچایا۔ شام پہنچایا سے مراد کیا ہے کہ وہ خود اسیر کر کے لے کر گیا کہ اپنی فتح کا جشن منائے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ یہ بیویاں اسلام کا پیغام لے کر جگہ جگہ جائیں۔ اللہ نے چاہا تھا، یہ بات سمجھنی ضروری ہے، اللہ نے چاہا تھا۔ اب ایک اور بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، جب رسول اللہ کو قریش اور بالخصوص ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھیوں نے زد و کوب کیا، مارا پیٹا اور آپ کو شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، جناب خدیجہ کو خبر دی گئی اور جناب خدیجہ رسول اللہ کو لے کر واپس آئی ہیں مکے کے اندر، تو جناب خدیجہ نے خطبہ دیا اور رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ جناب خدیجہ نے خطبہ دیا، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ آپ نے سکوت کیا، خاموش ہو گئے۔ کیا؟ خدیجہ بولے گی کیوں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ شراکت ہے، کس کی؟ آپ کی اور میری۔ آج بھی دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری اور آپ کی اس کے اندر شراکت نہ رہے۔ ہم اس کو اپنے گھر کے اندر، ہم اس کو گھر سے باہر، ہم اس کو معاشرے میں، ہم انسانوں میں، اور بالخصوص اپنی آغوش میں پلنے والے۔ دیکھیے ایک ماں جو کرتی ہے نا وہ کوئی نہیں کرتا۔ خدیجہ کی آغوش تھی کہ فاطمہ الزہرا بنی۔ فاطمہ الزہرا کی آغوش کا کمال ہے کہ زینب کبریٰ سامنے آئی ہے، زینب کبریٰ سامنے آئی ہیں۔ اور جناب فاطمہ الزہرا کی آغوش سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ جناب زینب کبریٰ نے کیا سیکھا ہے؟ وہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ جناب خدیجہ سے سیکھا ہے کہ پورا شہر مخالف ہو لیکن وہ حق کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑی ہے، اسی طرح مابعد رحلت رسول جناب امیر المؤمنین دربار میں خاموش ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا کلام کرتی ہیں، جناب سید الساجدین خاموش ہیں اور جناب زینب کبریٰ خطبے دیتی ہیں۔ یہ اللہ چاہتا ہے کہ دین و شریعت کے اجرا کے لیے خواتین کا مقام، دیکھیے وہ ہم جیسی خواتین تو نہیں ہیں، ان خواتین کا مقام خدا ثابت کرے جن سے اللہ اپنا پیغام دینا چاہتا ہے۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم ان کی نیابت میں سب سے پہلے اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنی آغوش کو پاک کرتے ہیں اور ایک نسل طاہرہ کو لے کر آتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ ایک عورت کی بلوغت کو پہلے رکھا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، وہ پاک ہو جائے، وہ معرفت اور عطوفت اور رحمت اور خدا کی بندگی کے سفر کو پہلے سٹارٹ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدائی صفات کا اللہ نے اپنا تعارف جو ہے وہ ماں کے اس سے کیا ہے نا۔ میری اور آپ کی فضیلت کیا ہے؟ ماں ہے، ماں۔ ہماری سب سے بڑی تحریک کیا ہے کہ ہماری آغوش میں ایک انسان، ایک شعور، ایک ذہن اور ایک نظریہ ہے جس کو نمو دیتے ہیں۔ جناب ام البنین نے جناب ابو الفضل عباس کو کیا چیز سکھائی تھی؟ نظریہ سکھایا تھا کہ وقت کے امام کی اطاعت کرنی ہے۔ آغوش ام البنین کامیاب تھی، یہ فریضہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہب قلبی کی جو والدہ ہیں ان کی آغوش سے وہب قلبی نکلے تھے۔ جناب زہیر بن قین اپنی والدہ کی آغوش سے، جناب حر، آپ کو جب امام نے کہا خدا کرے کہ تیری ماں تیرے سوگ میں روئے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں آپ کو یہی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی ماں کون ہے۔ یہ آغوش کا کمال ہے جو میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ ہمارا اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نظریات، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ماں 2020 کی ماں ہر چیز کا علم رکھتی ہو، آپ کے پاس ہر چیز کی خبر ہو، آپ کے پاس ہر چیز کی نالج ہو۔ آپ کا بچہ سوال کرتا ہے، میں اکثر دیکھتی ہوں مائیں اپنے بچوں کے کوالٹی کوسچنز پر بہت ناز کرتی ہیں۔ واٹ اباؤٹ دا آنسر؟ جواب کس نے دینا ہے؟ ہمارے پاس بہت اچھے سوال کا بہترین جواب ہونا چاہیے، اور وہ جواب نکالنے کے لیے ہمارے پاس مطالعہ کرنے کی، اسٹڈی کرنے کا تھوڑا سا ایک اسٹیمنا اور ایک عادت ہونی ضروری ہے۔
اگر آج 2020 کی ماں مطالعہ کرنے، اسٹڈی کرنے، ریسرچ کرنے کی عادت نہیں رکھتی، ہماری آنے والی نسلیں کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائیں گی۔ ہماری آنے والی نسلوں کا شعور، ہماری آنے والی نسلوں کا ویژن کوئی اور چرا لے گا اگر آپ کی آغوش اسے حسینی نہیں بنائے گی، اگر آپ اس کو یہ شعور نہیں دیں گی کہ اس کے ایمان کی دولت کیا ہے، اس کا 9 سال میں بالغ ہونا کیا ہے، اس کا ولایت علی ابن ابی طالب میں رہنا کیا ہے، اس کو امام حسین کا مشن کیسی حریت و آزادی سکھاتا ہے، اگر یہ میں اور آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکیں گے تو ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے کہ کوئی اور آ کے ہائی جیک کر لے جائے۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ گوگل کو علیہ السلام بنائیں، اس میں سے ساری چیزیں نکالیں، اپنے مطالعے کو بہتر کریں، ریسیپیز چھوڑیں۔ ریسیپیز میں کیا رکھا ہے؟ جو کھانا بنانے آتا ہے بنائیں، اپنے بچوں کی روح کی تربیت کے لیے ایک ماں کو ویل انفارمڈ اور نالجبل لرنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ بچوں کے اچھے سوال پر ناز نہ کریں، اپنے اچھے جواب دوسروں کو سکھائیں۔ لہٰذا میرا اور آپ کا اولین فریضہ، یا یوں کہوں آسان الفاظ میں، انبیاء آئے تھے جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اسی کام کے لیے آپ کو، جو کام انبیاء کا تھا کہ انسانیت کی تربیت کریں، وہی کام آپ کا ہے کہ انسانیت کی اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر سے وہی کام کریں جو نبیوں نے کیا تھا۔ میں ایک بات، سورہ نوح کی شروع کی آیات ہے، یہ تربیت کا کام آسان نہیں۔ حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی نبوت کا پیغام دیا، اور سورہ نوح میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ اے پروردگار انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے دن اور رات کو اپنے لوگوں کو حق کی جانب بلایا، دعوت دی، لیکن جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنی انگلیاں لے کے کانوں کے اوپر ڈال دی اور کپڑے سے اپنا منہ چھپا کر بھاگ گئے۔ تربیت ایسا کام ہے، آپ کا بچہ آپ کے پیچھے نہیں آئے گا، آپ کو حضرت نوح کی طرح حوصلہ بلند کر کے ان کی تربیت کرنی ہے، دن رات ایک کرنا ہے۔ صرف ان کے جسم کی نشو و نما نہیں ہے، صرف ان کے بدن کی نشو و نما اور اس کی صحت نہیں ہے، ان کے ذہن کی، ان کے ویژن کی، ان کے نظریے کی، ان کی سوچ کی، وہ کس تحریک کا حصہ بنتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے سیکولر بننے کے اس میں ایتھیسٹ بن جائیں، جو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ماڈرن بننے کے اس میں لادین ہو جائیں یا دین سے دور ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اپ ڈیٹڈ رہنے کے چکروں میں پیئر پریشر میں آ جائیں اور گناہ کی جانب غلط ہیبٹس میں چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بچی ہمارے سامنے حجاب کر رہی ہو لیکن تنہائی میں اس کے پاس حجاب کیوں کرتی ہوں کا جواب تک نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے لیے اسلام کو ننگو آر یا اپنے برائٹ فیوچر کے راستے میں کوئی آبسٹیکل سمجھ رہی ہو۔ یہ نظریہ میں نے بطور ماں اپنے بچوں کو دینا ہے، آپ نے بطور ماں اپنے بچوں کو دینا ہے، اور جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خزانہ جو میرے اور آپ کے گھر کے صحن میں دفن ہے، ہم اس خزانے کو گن نہیں رہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم ان سکوں کو گن کے خوش نہیں ہو جاتے، عورت ہونا، ماں ہونا، تربیت کرنے والا ہونا، نہیں، بلکہ ہم اپنے اس ایٹریبیوٹ کا، اپنی اس خصلت کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اس عظیم مقصد میں شامل کر رہے ہیں، جس عظیم مقصد میں بیبیاں جو کربلا کے میدان سے نکلی تھی وہ شامل ہوئیں۔ تاریخ گواہ ہے، خولی بن تمیم نے کہا ہم ان بیبیوں کو ہر جگہ لے جاتے تھے تاکہ رسوا اور ذلیل کریں، لیکن یہ بیبیاں جہاں سے گزرتی تھیں وہاں پر فاتح بن کر داخل ہوتی تھیں، وہاں پر عزت و شرف کے ساتھ داخل ہوتی تھیں۔ میری جان قربان ان بیویوں پر جنہوں نے شام کے زندان میں نہ صرف اسیری کاٹی بلکہ ایسی ایک ننھی سی قبر بنائی جس قبر پر آج تک زمین اور آسمان کے ملائکہ گریا کرتے ہیں۔ میری روح فدا اس قبر مطہر پر کہ جس سکینہ کی قبر پر ام رباب جب تک شام میں رہی گریا کرتی رہی، اور جب شام سے نکلی ہیں مدینہ آئی ہیں تو کھلے آسمان پر سورج کے نیچے بیٹھ کر گریا کرتی رہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ام رباب، ام لیلہ، ام فروہ، جناب ام کلثوم، جناب
زینب کبریٰ جناب فاطمہ کبریٰ کی قربانیاں اور دیگر مستورات کی قربانیاں نہ ہوتی تب تک اسلام سرفراز نہ ہوتا۔ روایت عجیب جملے لکھتی ہے، شام ایک ایسی جگہ تھی جس نے میرے مولا کو 35 سال رلایا کہ جہاں جاتے جب جاتے گریا کرتے، یہاں تک کہ روایت ہے کہ جب میرے آقا سید الساجدین بازار میں جاتے اور قصائی کی دکان کو دیکھتے تو گریا کرتے۔ قصائی آپ کو آتا ہوا دیکھ کر اپنے جانوروں پر کپڑا ڈال دیتے۔ یک دفعہ ایک قصائی بھول گیا، آپ نے اس سے سوال کیا، آپ نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ تم نے ذبیحہ کے تمام احکام پورے کیے تھے؟ اس نے کہا جی مولا میں نے سارے احکام پورے کیا۔ آپ نے پوچھا تم نے کیا کیا آداب ذبیحہ، جس جانور کو ذبح کیا ہے اس کے کون کون سے آداب پورے کیے؟ اس نے کہا مولا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، ہم کبھی بھی کسی جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے جتنے بھی دوسرے جانور ہیں ان کے ریوڑ سے اسے دور لے جایا جاتا ہے، کبھی بھی دوسرے جانوروں کے سامنے ایک جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ کہنے لگا کہ ہم اپنے چاقو کو تیز کر دیتے ہیں تاکہ جب گردن پر چھری پھیری جائے تو آسانی سے ذبح ہو جائے اور جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ کہنے لگا کہ ہم ایک اور کام یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو سوئے قبلہ جانور کو لٹا دیتے ہیں، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ضربتوں میں، کم سے کم کٹس کے اندر ایک ذبیحہ کو ایک جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ لہٰذا ہم اس کا رخ قبلے کی جانب کر کے تکبیر لگا کر کلمہ پڑھ کر اس کے گردن کے عین نیچے، اس کی تھوڑی کے عین نیچے جو چن ہے اس کے عین نیچے جو پہلی 4 رگیں ہیں اسے کاٹتے ہیں اور اس سے خون بہنے دیتے ہیں۔ اس طرح جو ذبیحہ ہے اس کی حس ختم ہو جاتی ہے اور پھر باقی کی گردن کاٹنا آسان ہو جاتی ہے۔ جب یہ سنا تو میرے مولا نے گریہ کیا، فرمایا میرا سلام ہو، میرا سلام ہو اپنے مظلوم بابا پر جن کے اوپر ذبیحہ کے بھی احکام پورے نہ ہوئے، جن کے ساتھ وہ سلوک بھی نہ کیا جو جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو اپنے بابا پر جن کو تشنا ذبح کر دیا گیا، میرا سلام ہو اپنے مظلوم بابا پر کہ جن کو جب ذبح کیا گیا تو 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی تھی۔ فرمایا میرا سلام ہو اپنے بابا پر جن کے گردن پر جو چھری چلائی گئی اس کو کند خنجر سے کاٹا گیا اور خنجر کی 13 ضربتیں چلی۔ فرمایا میرا سلام ہو اپنے بابا پر جن کے لب تشنا تھے اور جب ذبح کیا تو ذبیحہ کے احکام ہے کہ گلے کے نیچے سے، چن کے نیچے سے کاٹا جائے، لیکن اللہ پشت سے گلا کاٹا گیا۔ فرماتے ہیں میرے آقا جو جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس سے بھی ابتر سلوک جنت کے شہزادے کے ساتھ کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين.